اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ الحمدللہ آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اچھا اللہ کا شکر ہے, اچھا جا رہے ہیں روزے بھی. ابھی ایسے کرتے ہیں کہ بک شیئر کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہاں تک پڑھا تھا؟ لیسن 9 تک آئے تھے ہم لوگ. آج لیسن 9 پڑھنی ہے. شروع کرنا ہے. آج بے پارٹ پڑھیں گے نا, یا نہیں یہ آپ کا نہیں, آپ کا یہ نہیں, آپ کا لیسن نمبر 9 ہے. ایک منٹ میں نکال لوں. اس کو بک کو اچھی طرح کرو ورنہ مجھے ریوائز کروانی پڑے گی بک, پھر ٹائم ویسٹ ہوگا. تو اس کو اچھی طرح آپ لوگ خود پڑھو. یہ تو لیسن نمبر 10 آ گیا. تو لیسن نمبر 9 کا ہم نے پارٹ 1 ہی پڑھا تھا صرف, ہے نا؟ ہاں اس دن تھوڑی دیر کرے تھے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تو یہ ہم نے کیا تھا, مجھے یاد نہیں ابھی. نہیں کرے نا, نہیں ایکچولی لیسن نمبر 9 نہیں کرے, 8 کمپلیٹ ہو گیا. اچھا 9 شروع کرنا ہے نا. جی جی چل ٹھیک ہے, پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھیے. پہلے شیئر نہیں کیا میں نے, 1 سیکنڈ کر دیتی ہوں. آئی تھنک میں نے شیئر کیا ہوا ہے. یہ ہے. چلیے پڑھیے. الدرس التاسع. lesson 9. من هذا الرجل هو عباس. I mean, who is this man? This is Abbas. Not Abbas this کے لیے he is Abbas. ہاں he is Abbas. this کے لیے تو حاضر آتا ہے نا, ہے نا. یہ ہے he is Abbas. آگے ٹھیک ہے. عباس تاجر. Abbas is a merchant. Abbas tajirun ghaniyun. Abbas is a rich merchant. Hamidun mudarrisun. Hamid is a teacher. اس کے بعد آنٹی تھوڑا اسکرول کر سکتے. یہ ہے نا جی. حمید مدرس جدید. حامد is a new teacher. من هذا. ما هذا, what is this? هذا تفاح. This is an apple. التفاح فاکہۃ لذیذۃ. کیا غلطی کی ہے ہم اس نے پڑھنے میں؟ ہم نے دیکھا نہیں, سنا نہیں کیا کہہ رہی تھی وہ. انہوں نے کیا کہا ہے؟ التفاح کہا ہے انہوں نے. تو آپ غور سے سنا کرو تاکہ اس کی مسٹیک نکالو. میں آپ سے پوچھوں گی, ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے التفاح. Is this right? نہیں. No. تو پھر کیا ہے؟ التفاح ہو کیوں آ رہا ہے, ایک پیش کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ ال ہے, ٹھیک ہے نا. آگے تو آپ میننگ کیجئے. This, I mean, the apple. فاکہۃ کا میننگ کیا ہے آنٹی؟ فروٹ. The apple is a tasty fruit. Good. فاکہۃ mean fruit. لذیذۃ tasty, yummy, right? Next. جی. ما ذالک, what is that? ذالک عصفور.
that is a bird. العصفور طائر صغير. The bird is العصفور mean ذالک عصفور کا meaning ہوتا ہے sparrow. sparrow پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوتی ہے؟ sparrow پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جو چون چون کرتی ہے نا ونڈو میں آ کے، چھوٹی سی برڈی ہوتی ہے نا، اور وہ کیا کرتی ہے، وہ آ کے تو اس کو عصفور کہتے ہیں، چڑیا ہے نا، چڑیا چون چون کرتی ہے. آپ کو پتہ نہیں چڑیا کا نام پتہ نہیں ہے، اسپیرو. اچھا ذالک عصفور دیٹ از اے کیا بولیں گے؟ اسپیرو. اسپیرو that is a sparrow. العصفور عصفور طائر صغير. The sparrow is a bird. is a small bird. small bird. Very good. آگے العربیۃ العربیۃ لغات سہلۃ. لغت نہیں ہے، تشدید نہیں ہے یہاں پہ، لغت سہلۃ. ٹھیک ہے. the Arabic is a سہلون مین کیا ہوتا ہے؟ ایزی. ایزی لینگویج. Arabic is an easy language. لٹریچر ہے لغت لینگویج، آسان زبان ہے نا. العربیۃ لغت سہلۃ. پھر بھی لوگ نہیں سیکھتے. چلیں ارم آپ پڑھیں. العربیۃ لغات جمیلۃ. Arabic is a beautiful language. The Arabic is a beautiful language. آگے عمار طالب مجتہد ومحمد طالب ومحمود طالب کسلان. Okay. Ammar is a hardworking Talibun student. Mahmood and Mahmood is a lazy student. Lazy. Okay. جو پڑھتا نہیں ہے، بس کلاس میں بھی سویا رہتا ہے. آپ ایسے کرتے ہو؟ وَمَحْمُودٌ طَالِبٌ كَسْلَانُ. تو محمود کیا ہے؟ is a lazy student. آگے من انت who are you. انا طالب I am a student. انت طالب جديد. Are you a new student. نعم أنا طالب جديد. Yes, I am a new student. Yes, I am a new student. ابھی ہم کیا کریں گے؟ تمارین کریں گے. اس میں صرف ریڈ کرنا ہے. تھوڑا سا آپ پڑھ لو پھر بہن پڑھ لے گی. چلو تمارین کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ ایکسرسائزز. پڑھیے. اقرأ واكتب. محمد طالب قديم. Muhammad is an old student. Good. أذلك رجل
mudarrisun jadidun. مدرس جديد. अज़ालिका रजुलु, इसको मिला के पढ़ना है, ठीक है. अज़ालिका रजुलु मुदरिसुन जदीदुन, मीनिंग क्या होगा? Is that man a new teacher? Is that man a new teacher? आगे. لا هو طبيب جديد. No, he is a new doctor. Good. هذا درس سهل. This lesson कहेंगे या this is कहेंगे? This is this lesson है. This is an easy lesson. This is easy. सहलतुन ऊपर पढ़ा था ना, अल-अरबियतु लुगतुन सहलतुन. अब ये दर्स आ रहा है, तो दर्स जो होता है वो क्या होता है? सहलन का मतलब आंटी अहसन वो सहलन का मीनिंग क्या है? इजी. अहलन अहलन व सहलन वो भी इसी तरह ही होता है. अहलन व सहलन, यानी अहलन का मतलब होता है, अहल तो घर वाले होते हैं ना. ओके. यानी तुम इस घर में अपना घर ही समझ के आओ. अच्छा, इसको अपना ही घर समझो. जी दरस होने से पहले होता है ना ये, तो फिर मेरे को इसका मीनिंग इसलिए. अच्छा, अहलन व सहलन. हाँ, तो वही मीनिंग होता है ना. तो जैसे हमारे घर में कोई आता है तो हम अहलन व सहलन कहते हैं, तो वो भी घर ही होता है ना. जब लेक्चर आप सुनते हैं तो वो भी तो होता है ना. क्लासरूम होता है तो क्लासरूम भी अहलन व सहलन कह सकते हैं. वो अहलन और सहलन होता है, दो जबर के साथ होता है. ठीक है. तो ये जो है दो पेश के साथ. जब दो जबर के साथ लाम आएगी तो फिर अलिफ भी आएगा. कभी आपने लिखा हुआ देखा है अहलन व सहलन? बोलते सुना है, लिखा नहीं देखी हूँ, बोलते हुए सुनी हूँ. चलो ठीक है. तो हाजा दर्सन सहलन, दिस इज. आप देखें ये वाला और इसमें फर्क है. इसको हमने कहा था दैट मैन, क्योंकि यहाँ पे अलिफ लाम आ रहा है. तो हमने ये नहीं कहा कि दैट इज मैन, ये नहीं कहा था जी. तो यहाँ पे अलिफ लाम, तो दैट मैन कहा था. लेकिन यहाँ पर क्या है, अलिफ लाम नहीं आ रहा. इशारा के बाद अलिफ लाम नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे दिस लेसन. दिस इज इजी. एन इजी होता है, एन इजी लेसन. तो पहले हम इसका तर्जुमा करेंगे, फिर इसका करेंगे, उलट करेंगे. दिस इज एन इजी लेसन. आगे पढ़े. अब्बासुन तजीरुन शहीरुन. Abbas is a merchant in a. मर्चेंट कौन सा मर्चेंट है? शहीर का क्या मीनिंग होता है? उर्दू में भी बोलते हैं ये लफ्ज शहीर. इसके बदले हम मशहूर बोलते हैं ना, फेमस. अब्बास इज अ फेमस मर्चेंट. ठीक है. Fully famous. हाँ, फेमस. ठीक है. आगे नंबर 5. बिलालुन मुहंदिसुन कबीरुन. Bilal is a big engineer. आगे. इनक्लिजियतु. लुगातुन सअबतुन. अल इंक्लिजियतु क्या होती है? कौन सी लैंग्वेज होती है? इंग्लिश इज डिफिकल्ट. साबतुन उसका ऑपोजिट है. ठीक है. सालुन इजी, और ये क्या है? डिफिकल्ट लैंग्वेज. सही है. लुगातुन लैंग्वेज. आगे पढ़े. एक जुमला पढ़िए.
أنت رجل غني. Are you a rich merchant? Good. क्या आंसर A दे rich रहा है? man, sorry. मैं لا أنا رجل فقير. No, I am a poor man. poor man. Okay. أنت مدرس قديم. Are you an old teacher? لا أنا مدرس جديد. No, I'm a no, I am a new teacher. New teacher. आगे. أحمد طالب خسلان. Is Hamid a lazy student? Is Hamid a lazy student? لا هو طالب مجتهد. उर्दू में बोलते हैं ना मुझ बोलते हैं ना मुजतहिद. ओके आगे. No, he is a hardworking student. Good. Number 10. القاهرة مدينة كبيرة. Cairo is a city. It's a city. Cairo is a big city. It's a big city. Medina means city. Okay. Kabira means big. Kabir se hai kabiratun. Big city. Cairo is a big city. Cairo कहाँ पर है पता है आपको? इजिप्ट में ना. कायरो इजिप्ट में. इजिप्ट जो कंट्री है उसके अंदर कायरो सिटी है. ठीक है. और वो कौन सा सिटी है? इट्स नॉट अ स्मॉल सिटी, इट्स अ बिग सिटी. चलिए अब आगे करते हैं. बहन को दे दो छोटी को. देखते हैं क्या करते हैं. मामा पहले ये पढ़ लें, ऊपर वाला पढ़ लें. मामा को बोलो पढ़ लें ये वाला. करीब है. फी को अलग से नहीं पढ़ना, फी को मिलाना है. जी. दाफिल फरागी फिल जुमली जुमलिल लातियती नातन लातियती नहीं है, आतियती है. ओह सॉरी, लास्ट टाइम ये बताया था. आतियती नातन मुनासिबन. ठीक है. लेकिन जब दो जबर आती हैं आगे अलिफ भी ऐड होता है. जी. ठीक है. जब भी दो जबर आएंगे किसी लफ्ज के ऊपर अलिफ ऐड होगा. लेकिन दो पेश होंगे तो नहीं ऐड होगा. दो जेर होंगे तब भी नहीं ऐड होगा. ताजिर उनमें कोई अलिफ नहीं आ रहा आगे. दो पेश आए हैं. जब जैसे ही दो जबर आ जाएंगे ताजिर रन एक अलिफ ऐड हो जाएगा. इल्मुन होता है और जब हम उसको दो जबर देते हैं इल्मुन को, जब दो जबर देंगे इल्मुन है ना, जब इसको हम दो जबर देंगे तो क्या हो जाएगा? अलिफ ऐड हो जाएगा. रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़ते हैं, इल्मन है. लेकिन पढ़ते क्या है? कभी इस दुआ को गौर से देखना, उसमें आपके दो जबर आखिर में अलिफ आता है. जी. वो चले जाते हैं, खाली अलिफ रह जाता है. हाँ, पेश चले जाते हैं, फिर दो जबर आते हैं, जबर के साथ अलिफ आता है. लेकिन जब हम इल्मिन लिखेंगे, दो जेर लिखेंगे तो भी हम तो अलिफ ऐड नहीं करेंगे. इसी तरह तो हर लफ्ज का यही तरीका होता है. ठीक है. गोल ता में ऐसा नहीं होता. जब गोल ता आती है तो फिर ऐसा नहीं होता. जन्नतुन जन्नतन कोई अलिफ ऐड नहीं होगा. सिर्फ दो सिंपली दो गोल ता पे दो जबर लग जाएंगे और जन्नतिन हो जाएगा. मुस्लिमतुन मुस्लिमतन मुस्लिमतिन. तो आप इन चीजों को गौर से देखा करें. गोल ता वाले लफ्ज पे दो जबर आ रही है तो वहां पे अलिफ ऐड नहीं होता.
अच्छा, अब इसको दोबारा से एक दफा पढ़िए. जी. फिल फरागी फिल जुमली आतियती नातन मुनासिबन. मुनासिब. इसको मिलाना नहीं था, मुनासिबा. इसको मिलाना नहीं था अल के साथ. फिल जुमलिल आतियती. फिल जुमलिल आतियती नातन मुनासिबा. अच्छा, यहाँ पे जेर क्यों आ रही है, ये वाली और ये वाली, यहाँ पे जेर इधर भी आई है, क्यों आ रही है? ये दोनों को ऐड करने के लिए. नो नो, ऐड करने के लिए जेर नहीं आती है, ऐड करने के लिए वाव आता है बीच में. ये फी की वजह से आ रहा है कसरा, फी की वजह स्टार्टिंग से. में फी आए तो ओके. फी आए या मिन आए या इला अला कुछ भी आएगा तो फिर क्या होगा, कसरा आएगा. मिन इला अला, है ना. जितने भी वर्ड आपने पढ़े हैं ना, फी भी पढ़ा है, तो ये सारे जो हैं ये आपके आगे वाले नाउन को कसरा दे देते हैं. अल फरागु होता है, अल जुमलु होता है, लेकिन कसरा आ जाता है. ठीक है जी जी. तो नॉर्मल एंडिंग क्या होती है, वो दमा होती है, पेश होती है, एक पेश या दो पेश नॉर्मल एंडिंग होती है. लेकिन जब पीछे से कोई आता है तो फिर उसकी नॉर्मल एंडिंग चेंज हो जाती है और वहां पे या तो जबर आ जाती है, जैसे यहाँ पे आई है ना तन मुनासिबन में, या फिर जेर आ जाती है. समझ आए? जी जी. चलिए अब पढ़ो, आप छोटी वाली बच्ची पढ़, क्या नाम है? Fill in the blank in each of the following sentences with a suitable adjective. गुड. तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एडजेक्टिव लगाना है. ठीक है, तालिबा, तालिबा का एडजेक्टिव यहाँ लगाना है, ताजिर का एडजेक्टिव लगाना है. चलें पढ़े और लगाएं. एडजेक्टिव पता है ना क्या होता है? जी. हाँ, तालिबतुन मुज्तहिदतुन, तालिबतुन जदीदतुन या तालिबतुन कदीमतुन, कोई भी एडजेक्टिव लगा दें आगे. ठीक है, ठीक. चल. खतीजतु तालिबतु जदीदुन. तालिबतु है या तालिबतुन है? तुन. तुन है, तो आपने आगे दो पेशी वाला लफ्ज लगाना है. ठीक है, क्या लगाएंगी? जदीदुन. जदीदुन. जदीदुन तो जो है वो तो इसके आगे नहीं आएगा, ये फेमिनाइन है ना, तो आपको भी फेमिनाइन वाला लगाना है ना. जदीदतुन. जदीदतुन. आगे खालिदुन तजीरुन गनीयुन. गनीयुन कर सकते हैं. ठीक है, रिच है, सही है. अब ये मैस्कुलिन है तो गनीयुन लगाया है. जब फेमिनाइन आएगा तो आगे भी फेमिनाइन लगाना है, गोल्ड ता वाला लगाना. ये वाला करो. अल अराबियतु लुगातुन. लुगातुन. सहीलुन. सहलुन. स्टेपलर चाहिए, एक मिनट. अल उसफुरु तायरु लजीज. आंटी आपका आवाज नहीं आ रही. हाँ, म्यूट किया था मैंने थोड़ी देर. अच्छा पढ़े यहाँ से. अल अरबियतु लुगातुन. अल अराबियतु लुगातुन. लैंग्वेज इजी है ना. हाँ. सहलन. सहला सहलतुन. सहलतुन. क्योंकि ये आपका फेमिनाइन है ना, तो यहाँ भी फेमिनाइन है. ठीक है, सहलतुन आएगा. यहाँ पर पढ़ के आया ना, सहलतुन. अच्छा आगे क्या है, पढ़िए. अल उसफुरु. अल उसफुरु तयरुन लजीजतुन. लजीजतुन. बर्ड जो है बर्ड लजीज है. नहीं. The sparrow is a
टेस्टी बर्ड खा लेगी। लगता है लगता है भूख लगी है, इसको रोजा लग रहा है। सही में खाना नहीं खाइए। वैसे मजे का होता है लेकिन हम खा नहीं सकते, ठीक है। हेलो उस्फूर हाँ। तायरुन क्या लिखेंगे? सगीरुन, सगीरुन। आगे क्या? सगीरतुन, No, not सगीरतुन, because this is masculine, ठीक है। चिड़िया। तायरुन, ये इसके आगे गोल ता नहीं आ रही ना। तायरुन का मतलब होता है बर्ड, उस्फूर का मतलब है चिड़िया। स्पैरो इज अ जी। स्मॉल बर्ड, सगीरुन। नंबर 5, अत्फाहु फाकिहतुन लजीजुन, लजीजुन और लजीजतुन। लजीजतुन। लजीजतुन, क्योंकि इसके ऊपर गोल ता लगा है ना, तो आपने भी लजीजुन नहीं लिखना, लजीजतुन लिखना, ठीक है। आगे अना मुदर्रिसुन, आई एम अ न्यू टीचर, जदीदन, जदीदुन, क्योंकि ये मैस्कुलिन है तो आपने जदीदुन अभी लिखना है। यहाँ पर फेमिनाइन है तो आप फेमिनाइन है तो यहाँ पे आप जदीदुन नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे? जदीदतुन, जदीदतुन, तो ये आपने ख्याल रखना है ना। अच्छा मोहम्मदुन, मुहम्मदुन तबीबुन, मैस्कुलिन है, तबीब भी मैस्कुलिन है, क्या लिखेंगे आगे? मशहूर, मशहूर, फेमस, मशहूर, ये फेमस अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। शहीर, शहीद। शहर नहीं है ये, शहीर है, ओके। शहीरुन, जी। सही है। चलिए आगे। जी। अगर यहाँ पे लड़की होती, यहाँ पे कोई मरियमु तबीबतुन शहीरतुन हो जाता, ठीक है। तबीबतुन शहीरतुन हो जाता। अगर यहाँ लड़की का नाम होता तो तबीबुन नहीं लिख सकते थे, फिर क्या लिखते? तबीबतुन। मरियमु तबीबतुन शहीरतुन। चलिए आगे बताइए। नंबर 8, अल अल इंक्लीजियतु, ये इंग्लिजियतु लुगातुन, क्या बोलते हैं? हार्ड वर्किंग। नहीं, हार्ड है। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। फिर इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो साबतुन। साबुन होता है वो आपका मैस्कुलिन होता है, लेकिन ये लैंग्वेज है ना इसलिए हमने गोल ता लगाई है। वैसे साबुन जो है वो मैस्कुलिन के लिए आता है, साबुन इस तरह से लिखा जाता है, साबुन, जी। ठीक है। और ये साबुन का फेमिनाइन है, साबतुन, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। अंता, अंत तालिबुन, क्या होता है? अंत तालिबुन कदीमुन, कदीमुन, वेरी गुड। आगे अल कहीरतु मदीनतु मदीनतुन कबीरतुन। गुड। बस इसको बार बार पढ़ने की जरूरत है, मैंने तो एक दफा पढ़ा दिया ना, मीनिंग भी बता दिया, सब कुछ कर दिया। आप रिकॉर्डिंग को टीवी पे लगा के सुनते रहा करो, बार बार सुनते रहा करो इसको। मैं अभी आपको आज दूंगी। फ्रेश होता है ना, तो इस बाद में जब पढ़ते हैं ना तो इंशाल्लाह रिपीटेशन में हो जाए। हाँ सेम 24। प्लीज आप हाँ, सेंड कीजिए ना हमारा ये जो रहता है ना सेम, हाँ, ताकि हम लोग सेम एज इट इज वो नोट बनाते हाँ, हैं ना, तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, फिर मैं आपको भेजती हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं यूट्यूब पर डाल देती हूँ, लेकिन फिर मैं आपको आपके रूम में भी दे दूंगी, सही है। जी जी। अच्छा जी। उसके बाद यहाँ पर रूम का मतलब ये कि व्हाट्सएप पे भी दे दूंगी आपको, ठीक है। आप किसी रूम में नहीं है ना। आगे पढ़िए। मुझे पढ़ने बोल रहे। हाँ आप पढ़िए, बच्चे नहीं पढ़ सकते इसको, आप पढ़िए। जी। द्वाफिल मकानिल जाली सॉरी खालिफी खालिफिल खाली अलग पढ़े ना, मकान खाली 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 वाला ही है। हाँ, जी। खाली को आगे नहीं मिलाना,
मिलाते तब है जब अच्छा, अलिफ लाम आ। हाँ, खाली खाली फिल जुमली जुमलिल, आतियती आगे वाले फिल लफ्ज को जुमलिल देखें, आतियती। पिछले लफ्ज को पढ़ते हैं आगे वाले को देखते हुए। आगे जी अगर जी अलिफ जी। लाम आ रहा है तो उसके साथ मिला के फिर पढ़ते हैं। फिल जुमलिल आतियती मा मनऊतन मुनासिबा। मुनासिबा, मुनासिबन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दा का मतलब होता है कि फिल, दा का मतलब होता है पुट, ठीक है ना। फिल मकान निल खाली, खाली जगहों में, मकान मतलब जगह होती है ना, खाली होता है, खाली फिल इन द ब्लैंक्स में क्या रखना है आपने, फिल जुमल आतियती, इन जुमलों में, आने वाले जुमलों में, मनऊतन मुनासिबन। अभी आपको मनऊत रखना है, पहले आप क्या कर रहे थे, नात रख रहे थे, एडजेक्टिव रख रहे थे। जी पहले आप ये सहलतुन गनीयुन कदीमुन ये वर्ड रख रहे थे ना, जी जी। कसलानु भी रखा था आपने। अभी आपने यहाँ पर वो रखना है जिसका ये एडजेक्टिव है, यानी मनऊत को रखना है। ये नात होती है, आगे जो होती है ये नात होती है। अभी आप नात रख रहे थे, यहाँ पे लिखा होगा नात भी, शायद उन्होंने नात नहीं लिखा, नात लिखा था ना, नात। जी पहले उन्होंने नात रखवाया और अब वो क्या कह रहे हैं कि मनऊत रखो। मनऊत क्या होता है, जिसकी तारीफ की जाती है, जैसे मौसूफ होता है फिर सिफ्त होती है ना। मौसूफ जी सिफ्त जी का जी। पता है आपको, मौसूफ क्या होता है? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपके साथ स्टार्ट करी हूँ। नहीं, आपका ही थोड़ा कर रही मौसूफ कौन होता है? जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात तो पता है ना आपको, नशीद जो होती है हूँ। वो जी जी। नात होती है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हाँ उस हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? वो मौसूफ है या मनऊत है। तो अभी हमने मनऊत लिखना है यहाँ पे, जिसकी ये सिफ्त है उसको यहाँ पे लिखना है। सिर्फ बताया जा रहा है। जी जी जी, जिस पर्सन को ले रहे हैं यहाँ पे। हाँ, पर्सन को ले रहे हैं, वो पर्सन जो है उसको आपने लिखना है और उसके बाद उसकी नात तो लिखी हुई है। चलिए पर्सन लिखी, या चीज भी हो ओके। सकती है ना, कोई चीज भी हो सकती है ना। जी जी चलिए जी, अब जिसको बिलोंग करते हैं उसके बारे में अभी। हाँ हाँ, बिलोंग्स, जिससे वो एडजेक्टिव बिलोंग कर रहे हैं उसको लिखना है, जी। ठीक है। तो पढ़िए। अल अराबी अतु लुगातुन साहलतु। गुड, लुगातुन सहलतुन आपने पहले पढ़ा नहीं ऊपर, अभी बहन को दे दो ना, इरम को, क्या नाम है, पढ़े, ठीक है ना। अल अरबियतु लुगातुन, लुगा, लुगा, इसको लुगा नहीं बोलना, लुगातुन। एक दफा आपने गलत पढ़ लिया ना फिर गलत पढ़ती रहोगी। लुगातुन सहलतुन, आगे क्या है, अना, पढ़ो इरम। अना तालिबुन कदीमुन गुड, नेक्स्ट। अम्मारुन ताजिरुन गनियुन हाजा मकसूरन का मतलब मकसूरन, ब्रोकन, हाजा। हाजा कलमुन मकसूरन। अब कलम कोई चीज है ना, उसकी एडजेक्टिव है कि वो टूटा हुआ है। तो इस पहले वाले को मनऊत कहते हैं, इसको नात कहते हैं, बाद वाले को ये नात है, ये उसका एडजेक्टिव है, नात है। और ये क्या है, मनऊत है, ये लिखा हुआ है मनऊत। आगे क्या है, फैसलुन, ये भी मनऊत लिखा, ये भी मनऊत लिखा हुआ है ना, सूटेबल मनऊत। तो ये पहला वाला मनऊत है और आगे वाला नात है। आगे क्या है, फैसलुन, फैसलुन कस्लानुन लेजी। फैसलुन पर्सन, सॉरी, यहाँ पे लिखिए किसकी सिर्फ बयान कर रहे हैं। फैसल क्या है, स्टूडेंट है, कसलान, स्टूडेंट, ये तालिबुन, तालिबुन कसलानु। और यहाँ पे तनवीन नहीं लगानी, बाकी सब पे तनवीन आ रही है बट यहाँ पे नहीं आ रही। अभी आपको मैं बताऊंगी क्यों नहीं आ रही। फैसलुन तालिबुन कसलानु, तालिबुन पे भी तनवीन आएगा बट यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि ये डिप्टोट है, डिप्टोट। एक वर्ड याद कर लें, डिप्टोट। ओके।
پھر میں بتاؤں گی ڈپٹوٹ کیا ہوتا ہے، سب بتاؤں گی، لیکن یہ ڈپٹوٹ ہے اس لیے اس کے اوپر تنوین نہیں آ رہی. جب بھی جیسے مریم ہوتا ہے نا جی اور اسامہ تو ہوتا ہے، اب ان کے اوپر بھی ایک پیش آ رہی ہے نا. جی یوسف ہوتا ہے یا یوسفون ہوتا ہے؟ یوسفن فون ہوتا ہے. فو سوری فو یوسف. قرآن مجید میں غور کیا کرا. اچھا جی جی فرعون نو ہوتا ہے، تو ان سب جی پر ایک پیش کیوں آ رہی ہے؟ باقی سب پہ تو دو دو آ رہے ہیں، ان پہ کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ سارے ڈپٹوٹ ہے. ڈپٹوٹ پہ اوکے. تنوین نہیں آ سکتی. سمجھ آئیے کیا جی بات جی بتائی؟ ڈپٹوٹ کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی. جو بھی ڈپٹوٹ ورڈز ہوں گے ان کے اوپر تنوین نہیں آئے گی. جن کے اوپر تنوین نہیں آتی ان کو ڈپٹوٹ ورڈز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آہستہ جی آہستہ میں بتاؤں گی. بس یہ ایک ورڈ آپ لکھ لیں ڈپٹوٹ اور اس کو یاد کر لیں. ڈپٹوٹ. اچھا آگے کیا ہے؟ اقرا پڑھیے. ریڈ. خسلانو لیز جوانو جوانو جو میننگ پتہ نہیں نا. بتاؤں گی بعد میں بتاؤں گی. آپ پڑھیے. اچھانو مالانو ملعان. ملعان ٹھیک ہے نا. اچھا کسلانو کا میننگ تو آپ کو پتا ہے لیزی ہے نا. جوانو کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا آئیڈیا لگائیں. ایک سورہ میں بھی آتا ہے نا. جوان نہیں جوان نہیں ہے. جوان میں عین نہیں آتا. جوان میں عین نہیں آتا. یہ جوان ہے. جوان کا مطلب ہوتا ہے ہنگری. لکھیں اپنے پاس، جوان بھی لکھیں اور ہنگری بھی لکھیں. سب کے آگے الف ایک پیش آ رہی ہے. الف نون آخر میں آ رہا ہے. اچھانو تھرسٹی اور ملعانو فل. اور ایک اور ورڈ لکھیں غضبانو اینگری. غضبان. غضبان غضب سے ہے نا، ہے جی نا، جی غصہ اینگری. ٹھیک ہے نا. اچھا ابھی پڑھو بیٹا. جی انا انا جوانو آئی ایم I am hungry. That is true. أأنت جوعان؟ لا أنا عطشان. Are you hungry? No, I am thirsty. تھرسٹی. گڈ. اچھانو تھرسٹی. کتنے نئے ورڈ سیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. اور اتنی چھوٹی سی عمر میں. میں نے پتا کب سیکھے؟ 2005 میں نہیں، 2005 کے بعد 2007 میں مجھے سارے ورڈز کا پتہ چل رہا تھا. اور آپ لوگ ماشاءاللہ ابھی سے اس چھوٹی عمر میں سیکھ رہے. تو اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو کنٹینیو رکھنا ہے اور پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور شوق سے پڑھنا ہے. باقی سب چیزیں بیکار ہیں. سب چیزیں بیکار ہیں. جتنے بھی دولت پیسے بنا لو گے، جابیں کر لو گے، کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ. میں ان لوگوں کو وہی بتاتی ہوں کہ ہمیں تم اسکول میں پڑھائی کا، اسکول کا ماشاء اللہ سے اسکول میں اچھا پڑھتے ہیں لوگ. نہیں پڑھنا چاہیے، بالکل پڑھنا چاہیے. ہمیں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن پڑھو کتنا بس. بھی پڑھو، وہ کتنا بھی پڑھو وہ فائدہ نہیں ہے. اگر آپ قرآن میں سکسیس ہوں گے تو ہی سکسیس ہے. یہی بتاتی ہوں میرے بچوں کو. ہاں قرآن میں خود لکھا ہوا نا، جتنی مرضی ڈگریاں لے آؤ، تم جاہل ہو اگر تم نے قرآن نہیں پڑھا. تمہیں پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. ہم جو قرآن حفظ بھی کر لیتے ہیں نا تو ان کو بھی کچھ نہیں پتا ہوتا. ابھی ایک بچہ یہاں پہ، اس کی ماں رو رہی ہے بیچاری. سمجھے نہیں. ایک بچہ اس کی ماں نے اس کو حفظ کرایا اور وہ ایتھیسٹ ہو گیا. اللہ کیونکہ اس نے ترجمہ نہیں پڑھا، اس نے تفسیر نہیں پڑھی، اس کو کچھ پتا نہیں تھا. صرف اس نے پڑھ لیا، صرف رٹ جی لیا. الحمدللہ. اگر ہم لوگ اس کی طرف آئے ہیں تو ریزن وہی ہے نا، ہم قرآن ہمارے لینگویج میں سمجھے ہیں اس لیے اس طرف آئے ہیں. دیکھو بعد میں ہم قرآن عربی لوگ حفظ بھی کر لیتے ہیں اور غلط کام بھی کرتے ہیں، ہے نا. کہ معنی نہیں سمجھ کے
फायदा नहीं है ना. ना पीछे नमाजियों को पता होता है कि मौलवी साहब क्या पढ़ रहे हैं, ना मौलवी साहब को पता होता है वो क्या पढ़ रहे हैं. नॉर्मली तो ऐसा ही होता है, इंडिया पाकिस्तान में तो यही होता है. अभी ये है कि कुछ पढ़े लिखे थोड़े से आगे हैं स्कॉलर वगैरह जो जमात करवाते हैं, लेकिन वरना तो और पीछे वालों को फिर भी नहीं पता होता कि क्या पढ़ा रहे हैं. कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं ना कि इसको तर्जुमे से भी पढ़ना है, अरबी को सीखना है. हालांकि अभी हमने पढ़ा कि इट्स एन इजी लैंग्वेज. जी ठीक है ना. तो अब आप देखें कितने सारे वर्ड, कसलानु, लेजी, जवानु, हंगरी, ये कुरान मजीद में लफ्ज आता है. जी हम लोग दुआ भी पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन सॉरी क्या है, नहीं उसमें नहीं आती, उसमें आती है व अमनहुम मिनल खौफ हम्मी वल हुज़्नी, मिनल जुई, मिनल हम्मी मिनल जी मिनल हुज़्नी वल जुई. नहीं उसमें तो नहीं आती. अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी, क्या है बेटा, हम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल कसली वल जुगनी वल बुखली व दलदैहि व गलबतिर रिजाल. लेकिन उसमें तो ये वर्ड आता, कसली आया है उसमें, कसला लिया है ना. हाँ ये वाला आया है. कसला तो कुरान में भी आता है. हाँ कसला आता है कुरान में. ठीक है, इसकी मुअन्नस आती है. बट यहाँ पे जवान है, ये भी कुरान मजीद में आता है. व अमनहुम मिनल जुई, वो है ना मिनल खौफी वल जुई. जी आजमाएगा अल्लाह ताला भूख और प्यास से. अमन दिया किससे, भूख से और उससे. तो आप देखें जवान का लफ्ज आया ना वहां पे. अब आप पढ़ें, यही वर्ड है वो. अच्छा इसमें अलिफ नून लगा हुआ है, जैसे रहमान में लगा हुआ है, रहीम में नहीं लगा हुआ, लेकिन रहमान में लगा हुआ है ना. तो रहीम और रहीम भी, उसमें भी आप बहुत ज्यादा रहम करने वाला, बार बार रहम करने वाला, और ये होता है बहुत ज्यादा रहम करने वाला. तो जवान होता है बहुत ज्यादा हंगरी. कसलानु बहुत ज्यादा, ये एडजेक्टिव्स हैं, ये नात हैं, इसलिए तो बाद में आ रहा है ना एंड पे. जी तो ये आपके क्या है, ये नात है. और नात जो है वो एडजेक्टिव होता है, और इसमें बहुत ज्यादा, जैसे रहमान में क्या होता है, बहुत ज्यादा रहम, बेहद रहम फरमाने वाला है ना. तो इसी तरह आपका कसलानु बहुत ज्यादा सुस्त, बहुत ज्यादा भूखा, और बहुत ज्यादा थर्स्टी, और मलआन फुल भरा हुआ, ऊपर से बह रहा होता है पानी. तो इससे मिलता जुलता है कुरान मजीद में लफ्ज आता है मलाऊ. मलाऊ आपने पढ़ा है, फिरौन के जो सरदार थे, तो वो जो है उनको मलाऊ क्यों कहते हैं, क्योंकि वो भी भरे पूरे होते हैं ना, बहुत माल होता है सरदारों के पास, तो इसलिए उनको माल से भरे हुए, माल से भरे हुए. तो यहाँ पर मलआनु भरा हुआ यानी फुल. ठीक है. तो ये अलिफ नून जब लग जाता है ना, तो उसमें मीनिंग में बहुत ज्यादा वसत हो जाती है. बहुत रहम करने वाला. रहीम जो है वो बार बार रहम करने वाला, बट रहमान कौन है, बेहद रहम करने वाला. रहमान जी मुबालगा हो जाता है उसमें. तो अब यहाँ पे क्या है, अना जवानु आई एम, आप इतने यही तर्जुमा करेंगी. हंगरी, थर्स्टी. आगे पढ़ो बेटा. लिमाजल मुदर्रिसु गदबानुल यौमा. लिमाजा का मीनिंग क्या होता है, वाई. न्यू वर्ड है ये पहले पढ़ा है. लिमाजा, लीमाजा. आपने पहले माजा पढ़ा है, माजा पढ़ा है ना. माजा और माँ का एक ही मीनिंग होता है. माजा और माँ जो होता है उसका मीनिंग होता है व्हाट, बट लिमाजा का मतलब होता है वाई. तो जब तक ये याद नहीं करेंगे हम आगे नहीं चल सकेंगे. वाई, लिमाजल मुदरिसु. अब why the teacher is too angry today. Ghadbanul yawma. Why the teacher is too angry. टीचर एंग्री ही होते हैं हमेशा. आपको अच्छी मिल गई है उससे. आजकल तो गुस्सा करना भी चाहे तो नहीं होता रोज़े. लिमाज़ल मुदरिसु गदबानुल यौमा. तो why the teacher is angry today. नेक्स्ट क्या है, अलगुफु मलआनु.
कूब क्या होता है? अलकूबू द, अब पीछे पढ़ा है आपने कूब? ऑल है कप, 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 हाँ ओके. अलकूबू द Kubu कप, द कप इज full. फुल. ठीक है, चलिए अब ये वर्ड पढ़ेंगे. आप पढ़िए. छोटी बच्ची का क्या नाम है? मैं भूल गई. Eliza. हाँ, इलीजा. इलीजा आप पढ़िए. Al kalimatul jadidatu, new words. Al lughatu, language. Al-lughatu, Language. language. Shahirun, Famous. famous. Al madinatu, city. City. At tairu, Ta'iru, tairu. Bad. bird. The bird, Tasty right? bird. Tasty नहीं होता. Al-yawmu, Al yawm. Day. Today. Day. Today. Today. Day है. Yom. Kaslanu, Lazy, lazy. जवानु. hungry. जवान नहीं है, जवानु है ये. जवानु. अतशानु. Atshanu, thirsty. Malanu, full. Ghadbanu, angry. Al usfuru, sparrow. Al yawma, Day. day. टुडे. अल यौमु अल यौमा, यहाँ पे जबर आ रही है, यहाँ पे, लेकिन मीनिंग में कोई फर्क नहीं आता. अल यौमी भी होगा, जेर भी आएगी, तब भी मीनिंग टुडे ही होगा. मीनिंग नहीं चेंज होता. Day. Okay. हरकत चेंज हो जाती है, पोजीशन चेंज हो जाती है. ये पोजीशन और है, यौमु ये पोजीशन और है, ये पोजीशन और है, और जेर वाली पोजीशन और है. जैसे कोई चीज आसमान पे होती है ना, जैसे कोई बॉल ऊपर होता है आसमान में, हवा में होता है, तो वो फिर उसके बाद वो जमीन पे आ जाता है, और वो फिर रुड़क के कहाँ चला जाता है? नीचे गड़े में चला जाता है. ये तो 3 पोजीशन हो गई ना. जी जी. तो ये दमे वाली ये वाली पोजीशन है, रफा वाली जो टॉप पे है. ये टॉप पोजीशन जो है ना, ये दमा हो तो ये टॉप पोजीशन है. ठीक है. और ये वाली पोजीशन जो है, जो जबर वाली जो जमीन पे आ गई, ये वाली, ये मिडल वाली पोजीशन है. अर्थ के ऊपर आ गया ना, बॉल गिर के अर्थ पे आ गया, और फिर वो यहाँ से जाता जाता वो नीचे चला गया. कहाँ चला गया? गड़े में चला गया. तो ये 3 पोजीशन है. टॉप पोजीशन जमीन पे, और ये नीचे खाई में. जैसे प्लेन भी है ना, यहाँ पे है, फिर लैंड हो गया है ना, और फिर क्या हुआ? जी. वो कभी कभी जो होता है रनवे से रोड के नीचे भी चला जाता है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, तो वो नीचे लुढ़क जाता है. तो इस तरह ये 3 पोजीशंस होती हैं. ये टॉप वाली जो होती है, ये दमे वाली पोजीशन होती है. इसको रफा बोलते हैं. रफा, रफा, रफा सम का पढ़ा है ना आपने? रफा असम का. रफा सम का. तो रफा जो होता है वो टॉप पोजीशन होती है. आसमान को अल्लाह ने बुलंद किया. सम कहा, रफा सम कहा, आसमान को. उसके बाद आपकी ये वाली मिडिल पोजीशन जब जमीन पे आ जाती है कुछ चीज, तो इसको कहते हैं नसब, स्वाद से. ठीक है. नसब का मीनिंग होता है कि आपने उसको जमीन पे गाड़ दिया. यानी जैसे हम कोई चीज जमीन पे, जैसे कील ठोक देते हैं ना जमीन में, या कुछ चीज इस तरह की, पोल रस्सी बांधने के लिए कुछ जैसे टेंट लगाने होते हैं, तो वो लगाते हैं ना, तो वो जमीन में लगा देते हैं, तो जमीन के ऊपर उसको फिक्स कर देते हैं, नसब हो जाता है. तो ये वाली पोजीशन जो है जबर वाली, ये नसब वाली पोजीशन है, चाहे 2 जबर हो चाहे 1 जबर हो. और ये जो नीचे कसरा वाली पोजीशन होती है, अभी कसरा वाला कोई वर्ड नहीं है, जैसे आप फिर किताबी करते हैं ना. अब किताब जो है वो अल किताबू होता है, बट फी की वजह से वो क्या है, वो आपकी किताब, ये जर वाली पोजीशन में चला गया. कसरा लग गया तो ये जर की पोजीशन होती है. जर का मतलब होता है खींचना.
اور وہ اوپر سے کھینچ کے اس کو نیچے لے آتے نا. جیسے یہ زبر ہے, دیکھیں زبر ہے اور پھر اس کو کھینچ کے نیچے لے آئیں تو یہ کسرہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس کو جر کہتے ہیں کیونکہ کسرہ کا جر کا میننگ ہوتا ہے کسرہ. تو 3 پوزیشن ہو گئی, ایک زبر والی, نصب, رفع والی اور جر والی. تو بچوں کو ابھی یہ سمجھ نہیں آئے گی, لیکن اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھ لیں, پھر بچوں کو آہستہ آہستہ جیسے اب ان کی ایج ہوگی نا بڑھے گی تو پھر انشاءاللہ بتا دیں. انگلش میں بتائیں گے نا, ان کو انگلش میں بتائیں گے. نومینیٹو پوزیشن ہوتی ہے, پھر ایکوزیٹیو ہوتی ہے, اور پھر نیچے جو جری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کون سی ہوتی ہے, جینیٹیو. نومینیٹو پوزیشن دمے والی ہوتی ہے. نومینیٹو جی, ایک دمہ یا 2 دمے, ایک ہوگا یا 2 ہوگا کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. یہ آپ کی نومینیٹو رفع والی پوزیشن ہے, ٹھیک ہے, بلندی والی. پھر آپ کا ایک کسرہ ہو یا 2 کسرے ہوں تو یہ ایکوزیٹیو ہوتی ہے. کبھی آپ نے یہ ورڈ سنے ایکوزیٹیو, ٹھیک ہے, ایکوزیٹیو. اور پھر اگر ایک زیر ہو یا 2 زیر ہوں تو پھر وہ جینیٹیو پوزیشن ہوتی ہے, جینیٹیو فارم ہوتی ہے. تو یہ 3 طرح کی پوزیشن ہوتی ہے, لیکن میننگ نہیں چینج ہوتا. میں نے آپ کو بتایا چاہے زبر آئے پیش آئے میننگ وہی رہے گا. جی, الیومو کا بھی وہی میننگ ہے, الیوما کا بھی وہی میننگ ہے, ٹوڈے الیومی کا بھی وہی میننگ ہے. 3 ہی حرکات ہوتی ہیں نا, دمہ ہوتا ہے, فتح ہوتا ہے, کسر. میں نے فرسٹ والا لکھا ہے نومینیٹو, سیکنڈ اور تھرڈ بتا دیجیے گا. ایکوزیٹیو, ایکوزیٹیو میں سپیلنگ نہیں آ رہے, آپ اس کو دیکھ لینا گوگل میں. جی جی, ایکوزیٹیو. اور تھرڈ ون جینیٹیو, جینیٹیو, جی, جینیٹیو پوزیشن. تو آپ دیکھ لینا صحیح, اس کو سپیل کر لینا, میں یہاں لکھ بھی نہیں سکتی ابھی, ٹھیک ہے. نہیں میں کر لوں گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ 3 پوزیشن ہوتی ہیں. تو میں اب آپ سے پوچھتی رہوں گی یہ کس پوزیشن میں, تو آپ نے بولنا نومینیٹو پوزیشن ہے. یہ بھی نومینیٹو ہے, یہ بھی نومینیٹو ہے, یہ بھی سب یہ نومینیٹو ہے دمے والے. بس اب یہاں پہ آیا ہے آپ کا یہ آ گیا زبر آئی ہے, تو یہ ایکوزیٹیو پوزیشن ہے, ٹھیک ہے. اور پھر جینیٹیو تیسری پوزیشن ہوتی ہے, صحیح ہے. تو میں تو دونوں میں ہی پڑھاتی ہوں, رفع نصب جر بھی پڑھاتی ہوں, جو جیسے پڑھنا چاہے. لیکن بچے ہیں نا تو بچوں کو تھوڑا انگلش میں بتائیں گے تو اچھا رہے گا, جی, ٹھیک ہے. پھر میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ انگلش کی کوئی گرامر کی بک شیئر کروں گی جس میں یہ سارے ورڈ لکھے ہوتے ہیں. بلکہ یہاں پہ آپ کو بتائیں گے جب ہم اس میں کریں گے نا, یہ آگے جب ہم کرنے جا رہے ہیں پوائنٹس ٹو ریمبر, تو اس میں سب کچھ بتا دیں گے, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں چیزیں بتائیں گے. میں نے تھوڑا ارلی بتا دیا آپ کو تاکہ جب وہاں پہنچیں تو آپ کو پتا ہو پہلے سے. اچھا آگے کون پڑھے گا جی؟ ابھی این المدرس بے پارٹ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں, ہاف این آور اور پڑھیں گے, پھر اس کے بعد مجھے بند کرنا, نماز کا ٹائم. بے پارٹ پڑھیں گے ابھی, پڑھیے آپ, پڑھ لیں تھوڑا سا. این المدرس, Where is the teacher? where is the teacher? Huwa fil fasli, He is in class. he is in the class. Wa aynal mudarrisu, wa aynal mudarrisul jadidu, And where is the new teacher? دیکھا huwa اس کے indal. یہ جی کہاں جی, سے اس نے لیا سب کچھ, چھوٹی بچی نے کہاں سے لیا؟ اس کے خون میں ہے, مجھے لگ رہا ہے کوئی ہے اس کے پیچھے جو جس کی وجہ سے اس میں آیا. نہیں, یہ میری پیٹ میں تھی, میں نے پہلی بار عربک پڑھنے کی تڑپ اللہ سے اتنا رو رو کے کری تھی, اور میں خالی عربک لیٹرز پہ ہاتھ رکھ کے پھراتی تھی, سنتی تھی, بس اتنا ہی. تو اللہ کا شکر ہے اس کے اندر یہ میرے دونوں بچے بھی ماشاءاللہ سے جلدی کیچ کرتے. میری بڑی والی سمجھتی بہت جلدی ہے, ہاں وہ اور سمجھتی چھوٹی والی پڑھتی عربک جلدی کیچ کرتی ہے. ہاں وہ جلدی کیچ کرتی ہے, وہ میننگز کو جلدی کیچ بڑی والی کرتی کے ٹائم پہ میں نے پڑھا ہے قرآن کو, سمجھ کے پڑھا ہے میں نے بڑی والی کے ٹائم پہ میرے لینگویج میں, تو وہ جلدی سمجھتی ہے. اور اس کے ٹائم پہ میں رو رو کے اللہ سے دعا کری تھی کہ مجھے عربک سمجھنا ہے, دیکھنا ہے, اس کو پڑھنا ہے. نہیں میں سوچی تھی شاید آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے کچھ آیا ہے, وہ جانتے ہیں یا عربی. وہ لوگوں کا لینگویج گجراتی ہے, وہ لوگوں کو تو اس کا کنیکشن ہی نہیں ہے عربک سے, اچھا کدھر سے بھی کنیکشن نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے, یعنی ہم لوگوں کو اردو بھی, جی ہمارے ابھی ہم لوگوں کو بھی اردو سے بھی کنیکشن نہیں ہے, ہمیں اردو بھی نہیں آتی ہے. میں ابھی تھوڑی تھوڑی نہیں, سیکھی ہوں آپ کے الحمد ہسبینڈ للہ. نے قرآن تو پڑھا ہوگا نا؟
नहीं, वो लोग स्माइलीज थे ना, उन्होंने भी रिवर्ट है ना, मैं, मेरे हस्बैंड, अच्छा मेरे बच्चे, हम अच्छा लोग अच्छा 2016 में रिवर्ट हुए थे ना, तो तो उनकी लैंग्वेज गुजराती है। रिवर्ट कब हुए आप लोग? 2016 में। 2015 में, ओके 16 16 में, अच्छा ठीक है, सही है। तो उन्होंने फिर कुरान सीखने की कोशिश नहीं की, नमाज का सिर्फ सीख लिया कि नमाज में क्या क्या पढ़ना है, ये वे, नहीं है नहीं ना? नहीं, उन्होंने कोशिश करते हैं, हम्म, उन्होंने समझने की कोशिश करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, पर सीखने का नहीं हुआ उनसे ना, कायदा करे है बस, उतना ही कायदा करके बैठे हैं। पता है मतलब को इतना बस टाइम नहीं होता ना, जी जी, इसलिए जॉब हम वगैरह इस लोग तरह इसलिए की उन्हें होती बोलते हैं कि तुम लोग सीखो, मुझे नहीं हो पा रहा, ठीक है, पर तुम लोग सीख लो, इसलिए हम लोग इस पे ध्यान देते हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, इंशाल्लाह बच्चे सीख जाएंगे ना, तो उनके लिए सदका जारी है ये ना। अभी शुक्र है ये तो है, और फिर अल्लाह ताला तौफीक भी दे देता है, जैसे जैसे एक एज आगे जाती है ना, थोड़े बर्डन कम जी, होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो फिर वो, अभी तो पता है बच्चे छोटे हैं, पालने हैं, सब करना है, कमाना है, तो यहाँ पे कितने अखराजात होते हैं, यू नो। जी, तो बस अल्लाह महंगाई भी रखा कितनी हो गई है ना। जी, जब बहुत मैं ज्यादा यहाँ हमारे यहाँ तो ये 1 महीने से तो बहुत ज्यादा इफेक्ट गिरा है, ये पहला रमजान है यहाँ पे कि चीजें डबल प्राइस में मिल रहे हैं। डबल प्राइस हमेशा में, रमजान में ऑफर्स मिलते थे, ऑफर्स रखते थे, लेस प्राइस में मिलते थे, ये हम्म, रमजान में सब डबल हो गए हैं, नियरली डबल, डबल हो गए। खास तौर पे डेट्स कितनी महंगी हो गई हैं, जी, हर चीज हमें हमें हर हर चीज। चीज, फूड से लेके गोश्त तक हर चीज बढ़ गई है अभी यहाँ पे। और पाकिस्तान में अल्लाह रोते मालिक, हैं महंगाई है, इंडिया में रोते हैं महंगाई है, यहाँ भी महंगाई है, यहाँ हमें डॉलर्स में देने यहाँ पे भी। पड़ते हैं डबल। जी जी, बस अल्लाह चलिए, रहम अल्लाह करे। ताला, जी बिल्कुल, इंशाल्लाह सब उसके हाथों में ही है, और जी सब हमारे अपने हाथों की कमाई होती है, अल्लाह ताला तो सब पे रहम फरमाने वाले, 70 माओ जितना प्यार जी करने वाला, हमारे अपने जो हाथों की कमाई होती है, तो हमें जी, अपने बेशक। अमाल पे गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। वअइनल मुदर्रिसुल जदीदु, पढ़िए। वअइनल मुदर्रिसुल जदीदु, हम्म, आंसर करो। And where is the new teacher? हम्म, वइंदल मुदीरी, हुवा He इंदल is मुदीर, he is in the मुदीरी, he is with, in the mean with, he is is with the principal. मुदीरी प्रिंसिपल। with, और आपने माआ का लफ्ज पढ़ा होगा ना कुरान मजीद में, माआ जी, साथ क्या, साथ। साथ, तो वो भी उसका मीनिंग भी विद ही होता है, इसका भी, है ना। जी जी तो जी, दोनों का मीनिंग सेम है, इंदा का भी और इसका भी, माँ का भी। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। चले आगे। ऐन तालिबुल, ऐन तालिबुल जदीदु, Where is the new student? ज़हब इलल मक्तबी, मक्तबती, थी, हाँ, ज़हब इलल मक्तबती। he went, He went. ज़हबा इज अ वर्ब, राइट, ये वर्ब है, और ये क्या है, ये जी। हर्फ है, ये हर्फ है, और ये क्या है, ये नाउन है, ठीक है। तीन ही चीजें होती हैं, जी। या इस्म होता है, या फेल होता है, या क्या होता है, हर्फ होता है, फेल और हर्फ, ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं। जी। इस्म क्या होता है, जिसपे तनवीन आती है या अलिफ लाम आता है ना, वो क्या होता है, वो इस्म होता है। और वर्ब क्या होता है, तीनों पे जबर आ गई ना, तो ये क्या है, इस पे तनवीन भी नहीं है, अलिफ लाम भी नहीं है, तो ये आपका ज़हबा यहाँ आ जाएगा, फेल वर्ब में आ जाएगा, ठीक है। और हर्फ में, लेटर्स में क्या आ जाएगा, इला, इला, अला, मिन, बो, ये सब इसमें आएंगे, बो भी होता है ना, और वही सारे इसमें आ जाएंगे, मिन सारे। तो अभी मैं पूछती रहूंगी, ठीक है। तो ये वर्ब है, ये हर्फ है, और ये क्या है, नाउन है, बिकॉज इसके ऊपर अलिफ लाम आ रहा है। आगे पढ़े। ज़हब इलल मक्तबी का क्या मीनिंग होगा? He went टू द लाइब्रेरी। मकतब नहीं है, ये मकतबती है, मक्तबती, मक्तबती, बोल मकतबती, तो इस वजह से आ रहा है ना, जेनिटिव पोजीशन में, इसलिए आ रहा है कि इला आ गया ना पीछे,
ये इला है जी। वैसे तो अल मकतबा तू ही होता है, नॉमिनेटिव फॉर्म में होता है, नॉर्मल एंडिंग में होता है, बट ये जब इला आता है पीछे तो वो कसरा ले लेता है। अच्छा, जी। असल में तो मकतबा तुन होता है, फिर अलिफ लाम लगता है तो अल मकतबा मकतबा। तू हो जाता है, फिर जब इला लगता है पीछे तो वो जेर ले लेता है। ठीक है, जेनिटिव फॉर्म में चला जाता है। आगे मंजालिका रजुलु तवीलु रजुलु तबीलु रजुलु तबीलु लजी खरजल आना मिनल मदरसती सॉरी मिनल मदरसती। अच्छा, मन का मीनिंग आपको आता है ना? हु who is that man tall man that tall man that man नहीं कहना, tall भी कहना साथ। ठीक है, ये उसकी नात है ना, ये नात है ना, तवील एडजेक्टिव है ना, और ये नाउन है, ये पर्सन है। ठीक है, इसकी नात है तवील, और जाली का क्या है, वो इशारा है। हु इज दैट टॉल मैन, विच नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, अल्लाह जी के दो मीनिंग होते हैं, विच भी होता है और हु भी होता है। वो अगर पर्सन होगा तो हम क्या बोलेंगे, हु बोलेंगे, और अगर यहाँ पे कोई थिंग होगी तो फिर हम क्या बोलेंगे, विच बोलेंगे। तो अल्लाह जी हु खराजा, हु एग्जिट, एग्जिटेड, या हु लेफ्ट नाउ मिनल मदरसती, from the school। ठीक है, मन जालिका रजुलु तवीलु अल्लजी। ठीक है, खरजल आना मिनल मदरसती। आगे पढ़िए। हुवल मुदीरुल जदीदु। पहले क्वेश्चन आया कि इसको आंसर दिया है। अच्छा, क्या मीनिंग होगा? He is the new principal. He is new principal. He is a new principal। He is a new उसके बाद क्या है? वमनिल मनिल है ना? हाँ, वमनिल वलदु वलदु सगीरुल लजी खरजल आना मिनल फसली। अब इसका तर्जुमा करें। एंड हु is the small boy who is the small boy who now left class, who left from the class, now, who left just now minal fasli, from the class। min का मीनिंग क्या होता है? min mean from the class। और ये मन है, ये हु है। ठीक है, ये मन है और ये मिन है, तो दोनों का फर्क करना है। ये फ्रॉम है, तो जब आप दोबारा पढ़ेंगे ना, चीजों को अच्छी तरह आपने करना है, और जितना ज्यादा पढ़ेंगे इतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे, वरना मैं इस बुक को रिपीट करवाऊंगी अगर आपने अच्छी तरह ना की तो आपका टाइम जाया होगा, मेरा भी। आगे करें जी। एक लेसन और रह गया। हुआ बनुल मुदीरी इरिल जदीदी। He is the principal's son, new principal's son। Good, he is the new principal's son। ठीक है जी, चलिए अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा 15 मिनट और पढ़ लेते हैं, इसको खत्म करते हैं रीडिंग को, फिर हम एक्सरसाइजेस बाद में कर लेंगे। पढ़िए अभी। अब कौन पढ़ेगा? शमीम बाजी। यहाँ पे 6:15 हो रहा है, तो इंशाल्लाह बच्चे करेंगे तो 10 मिनट 15 मिनट, मुझे इफ्तारी की तैयारी करनी है। हाँ, तो इंशाल्लाह तो हाँ ठीक है। कितने बजे आपका इफ्तार होता है? 8 बजे? 8 बजे होती है, तो मैं 6 बजे शुरू करती हूँ, तो 1 घंटा 1.5 घंटे में खत्म कर लेती हूँ, फिर बाद में कुरान पढ़ना रहता है ना बोल के। सही है, दुआएं वगैरह करनी होती है। चलिए ठीक है, आप जा सकते हैं, आपने पढ़ लिया ना, बच्चे पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूँ। ओके चलिए पढ़िए। जी जज़ाकल्लाह खैर। हाँ इरम आप पढ़ें। लिमन तिलका
liman tilka sayaratul jamilatu. Who for whom is that beautiful watch? Watch नहीं है, car. Car, sorry, car. अब आप ट्रांसलेशन करें. छोटी बहन को बोलो ट्रांसलेशन करें, एलिजा को. For whom is that beautiful car? For whom that beautiful car. ठीक है ना. ये भी कह सकते हैं, हाँ, लिमन, whose भी कह सकते हैं, whose that beautiful car. ठीक है. उसके बाद जवाब क्या है? हिया लिल मुदीरिल जदीदी. It is for the new principal. Good. He का मीनिंग she होता है, बट हम it करेंगे. ठीक है. आगे क्या है? लिमन हाजल किताबुल कबीरु. For whom is that big book? This big book. To whom, whose is this new book? Big book. ठीक है. Whose is this big book? Kitabul Kabiru, big book. Whose is this big book? आगे क्या? हुआ लिल मुदीरी. मुदर्रिसी. Is it for the teacher? ला हुआ तालिबती सगीरती. No, it is for the small student. Good. Ainal mil akatul sagiratu. Where is the small spoon, right? Spoon. Okay. Next. Here fil Kubi. It is in the cup. Next. Ainal kursiyul maksuru. Where is the broken chair? Huwa hunaka. Huwa hunaka. It is hunaka. There. It is there. Over there भी कह सकते हैं, there भी कह सकते हैं. दूर है ना. It is there. इशारा कर रहे हैं. ठीक है. पॉइंट आउट कर रहे हैं. It is there. अच्छा, यहाँ पे मकसूर क्या है? ये आपका नात है. और अल कुर्सी क्या है? ये मनऊत है. ठीक है. मनऊत एंड मकसूर क्या है? ये आपका एडजेक्टिव है, नात है. इसी तरह अल मिल अकतु मनऊत है और सगीरा क्या है? उसकी नात है, एडजेक्टिव है. इसी तरह तालिबती, वो आपका क्या है? अच्छा, यहाँ पे तालिबती के नीचे कसरा क्यों आ रहा है? हाँ, कैसे बोल सकते हैं आंटी? कैसे ये कसरा क्यों आ रहा है? जेर क्यों आ रही है यहाँ पे? तालिबा के नीचे, कूबी के नीचे भी आ रही है. क्यों कसरा आ रहा है? Because of preposition. ये पीछे preposition आया ना, तो ये उसकी वजह से. ठीक है. सॉरी आंटी, हम लोग को नहीं दिख रहा था स्क्रीन, तो फिर हम लोग खाली फिक्स कर देते हैं. चलो ठीक है. अब नजर आ रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह. तो अब आप देखें यहाँ पे कसरा क्यों आ रहा है? ये preposition की वजह से आ रहा है.
अलकूबू जी। होता है, अलकूबू होता है, ठीक है, लेकिन जब पीछे प्रेपोजिशन आ जाता है तो फिर उसके नीचे कसरा आ जाता है। अब यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं आया ना, तो कसरा नहीं आया, अल मकसूरू आया है, क्योंकि पीछे प्रेपोजिशन नहीं आया। तो जब भी प्रेपोजिशन आएगा, देखें यहाँ कहाँ आया है, आप देखें यहाँ भी कसरा नहीं आया, यहाँ पे आपका कसरा आ गया। ये क्यों आया कसरा? अल मुदरिसु होता है ना, अल मुदरिसु, तो ली की वजह से आपका यहाँ पे कसरा है। इसी तरह लिल्लाही होता है ना, कहाँ पढ़ा है आपने लिल्लाही? कुरान में नमाज में पढ़ते हैं ना जी। हाँ, तो लिल्लाही, तो यहाँ पे कसरा क्यों आया? ली की वजह से। हाँ। यहाँ पर ली है, ली की वजह से कसरा आता है, ठीक है। तो जब भी आपका प्रेपोजिशन आएगा फिर वहां पे आपका कसरा आएगा। अब यहाँ पे देखो दम्मा आ रहा है, अतबीबू पे भी, अल जदीदू पे क्योंकि पीछे कसरा नहीं आ रहा, ठीक है, पीछे वो नहीं आ रहा, प्रेपोजिशन नहीं आ रहा। यहाँ पे देखें अल मुस्तौसफी के नीचे कसरा आ रहा है क्योंकि पीछे प्रेपोजिशन आ गया। तो जब भी प्रेपोजिशन आएगा तो फिर दम्मे को किस में चेंज करना है? कसरा में चेंज करना है। इसी तरह अल मकतबू होता है तो अल मकतबी हो गया प्रेपोजिशन की वजह से। गुरफतू होता है तो फिर गुरफती हो गया, सही है। अब यहाँ नंबर 4 में देखें, नंबर 4 में अल्लुगतुल अरबियतु सहलतुन, इसमें अभी क्या है आपका प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन नहीं आया, सबके ऊपर दम्मा आ रहा है, पेश आ रही है, सही है। तो इसको देख कर अब यहाँ फिल मदरसती, मदरसती में कसरा क्यों आ रहा है? क्यों कसरा है यहाँ पे? क्योंकि preposition है। प्रेपोजिशन है। अच्छा, इसके नीचे कसरा क्यों आ रहा है? इसके पीछे तो प्रेपोजिशन नहीं है। क्योंकि वो क्यों कसरा ला रहा है? क्योंकि वो adjective है। एडजेक्टिव तो है लेकिन वो फॉलो कर रहा है इसको फॉलो कर रहा है। इसके ऊपर अगर दम्मा होगा तो इसके ऊपर भी दम्मा होगा, ठीक है। इसके नीचे कसरा होगा तो ये जो एडजेक्टिव होता है ये फॉलो करता है। आपके पास कोई पेट है घर में? फिर से पूछ सकते? पेट है कोई आपके घर में? कैट, किटन? नहीं, पर यूजुअली गार्डन में से फॉक्सेस आते हैं, नहीं तो कैट्स आते हैं। अच्छा, और बर्ड हाउस भी है हमारे पास। जो पेट्स होते हैं ना वो आपको फॉलो करते हैं ना, आपके पीछे पीछे चलते हैं, है ना, या आपके आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर ये एक सेकंड में आपको ये बता देती हूँ, थोड़ा सा टाइम है। ये आपका है कहाँ पे? अल मदरसती अस्सानवियती। तो अल मदरसती के नीचे कसरा आ रहा है, वो फी की वजह से आ रहा है, प्रेपोजिशन की वजह से, बट सानविया के नीचे जो आ रहा है वो उसको फॉलो कर रहा है, वो इस कसरा को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अर्रजुलु था ना, तो यहाँ पे अल फकीरू आया है, इस पर पेश आ रही है, तो इस पर भी ये भी फॉलो कर रहा है, उसको पेश ला रहा है, दम्मा ला रहा है। यहाँ पर तालिबू अल जदीदू है, तो ये जो है आपका यहाँ पे दम्मा था, तो अब यहाँ इसको ये फॉलो कर रहा है। तो अगर पीछे कसरा होगा, बिहाइंड कसरा होगा तो आगे भी कसरा ही आएगा, पीछे फतह होगा तो फतह आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अस्सिकीनुल कबीरू, तो यहाँ पर अस्सिकीनु के ऊपर दम्मा था तो कबीर के ऊपर भी दम्मा ही आया। अगर यहाँ पर आप फी लगा दें, प्रेपोजिशन लगा दें, तो क्या हो जाएगा? अस्सिकीनी नी हो जाएगा। तो जब नी हो जाएगा तो अल कबीरू के ऊपर पेश नहीं रहेगी, फिर वो भी फॉलो करेगा इसको, ठीक है, तो वो भी कसरा ले लेगा, सही है। तो ये इसको थोड़ा सा देखना है। चलें दुआ कर लें। आपको दुआ आती है? मजलिस की दुआ आती है आपको? स्टार्टिंग को बोल जाते, जब भी कोई पढ़ाते फिर हम लोग अच्छा, याद आती हम लोग को। स्टार्टिंग में आप सुभान अल्लाह व बिहम्दिही बोल देना, सुभानक अल्लाहुम्मा
جو آپ نماز میں پڑھتے ہو نا, نماز میں پڑھتے ہو نا سبحانک اللہم و بحمدک, ہے نا, وہی بولنا ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ, نہیں وہ تو نہیں پڑھنا نا, ہم نے تو دعا پڑھنی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ٹھیک ہے, تو آپ کو ماما کو بولنا کہیں سے آپ کو ڈھونڈ کے دے گی, پھر آپ اس کو دیکھ کے پڑھو گی تو یاد آ جائے گی. ٹھیک ہے, نیکسٹ ویک تک یاد کر لینا, پھر میں آپ سے پڑھوایا کروں. چھوٹی سی دعا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک تو آپ کو آتا ہے نا, باقی آپ کو اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. چلیں اوکے, دعا بھی ہوگی. آپ کو آتی ہے, آپ پڑھ لیں. مجھے پڑھنے کے لیے بول رہے ہیں؟ ہاں پڑھ لیں پڑھ لیں. جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بولے تو اپنے ایک بندے کے لیے ہوتا ہے نا, نہ بولے تو سب کے لیے ہوتا ہے. ہاں تو پھر آپ دونوں جگہ پہ نام بولے نا, آپ ایک جگہ الف ایک بول رہی ہیں, دوسری جگہ جمع بول رہی ہیں. استغفرک و اتوب الیک دونوں جگہ, نستغفرک و نتوب الیک. اوکے اوکے, جی جی, ٹھیک ہے. تو اس کو بار بار پڑھیں گے نا تو پھر اچھا ججک نکل جائے گی ابھی سے آپ لوگوں کی بچیوں کی. تو ان کو سن لیا کریں. ہر فون پہ بھی لمبی بات کریں نا کسی سے, کوئی مجلس تھوڑی دیر بیٹھیں کسی بار, پھر بھی یہ دعا پڑھ کے اٹھنا چاہیے. جو ہم بری باتیں کرتے ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں, اور جو اچھی کرتے ہیں وہ سیو ہو جاتی ہیں ہمارے اعمال نامے میں. اگر ہم نہ پڑھیں تو وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی, جو ہم بری باتیں کر لیتے ہیں بعض دفعہ, ہے نا, کچھ ہو جاتی ہے نا, ہے نا, کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو وہ آپ کا کیا ہوتا ہے, کسی کے بارے میں کوئی بات کر دی تو وہ پھر ڈیلیٹ نہیں ہوتی, وہ رہ جاتی ہے. لیکن اگر دعا پڑھ لیں تو پھر ڈیلیٹ ہو جاتی. صحیح, اوکے. الحمدللہ اتنے دن سے میں پڑھ رہی تھی پر اس کا میننگ نہیں معلوم تھا. ہم لوگ سنتے تھے پر میننگ نہیں معلوم تھا. یہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ ریزن بتایا پڑھنے کا, میننگ نہیں بتایا. میننگ دونوں جگہ یا تو نون یا, میں خالی دعا سمجھتی تھی وہ, بٹ الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. بھائی اپنا سبق اچھی طرح یاد کیا کرو, ٹھیک ہے جی آنٹی. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھے بچے بننا جی.